ہماری طرف سے تو چونکہ آپ کا حکم ہے تو ہم ان کو دعوت دے دیتے ہیں، اور ہماری جو وائس پیرٹ صاحبہ ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم و کرم فرمایا، اور صرف یہ نہیں کہ اللہ نے ان کو ایمان اور اسلام کی توفیق دے دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کفر کے خلاف ان کو کھڑا بھی کر دیا ہے۔ اور آپ یقین جانیں، جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بہن کا لیکچر ہے تو میں ضرور اسے سنتا ہوں، اس لیے کہ ان کے لیکچر میں ادھر ادھر کی باتیں بالکل نہیں ہوتی، صرف قادیانی کتب کا مواد ہوتا ہے۔ تو مجھے شدت سے اس بات کا انتظار تھا، اور یقیناً آپ کو بھی اس بات کا انتظار ہوگا۔ تو میں آپ حضرات کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہے، اور اب انشاءاللہ پائس پیرٹ صاحبہ سے میں درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ اس موضوع کے حوالے سے اپنا لیکچر پیش فرمائے۔ جزاک اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع طے کرنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا، تو پھر سوچا کہ کیوں نہ آج بلا عنوان ہی گفتگو کر لیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا جب بینر تیار کیا تو اس کا نام بھی میں نے بلا عنوان ہی رکھ ڈالا، کیونکہ ناظرین و سامعین کرام جب آخر تک اس کو سنیں گے، یہ لیکچر نہیں ہے، گفتگو ہے، جب اس کو سنیں گے تو پھر خود ہی عنوان بھی طے کر لیں گے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی کہ ڈاکٹر یحییٰ قادیانی صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی ہی ایک سٹریم میں ہمیں اگلی گفتگو کے لیے اچھا خاصا مواد فراہم کر جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی حال ہوا جب میں نے ان کی ایک سٹریم سنی، گو کہ عنوان تو بہت عجیب سے رکھتے ہیں وہ، اور تمیز کے دائرے سے باہر رہ کر گفتگو کرتے ہیں، مگر بہرحال اس پہ لکھا ہوا تھا کہ غیر احمدی کلمہ گو مسلمان ہیں، تو اس میں بے شمار نکات نکلے۔ اگر میں نکات گنوانے بیٹھوں تو وہ بہت زیادہ ہیں۔ کہیں انہوں نے مفاد پرست اور موقع پرست قرار دیا، کہیں انہوں نے مدعی سست اور گواہ چست کا محاورہ بولا، کہیں انہوں نے کسی ایک فرقے کو دوسرے فرقے کے حوالے سے بتلایا، کہیں انہوں نے منیر انکوائری رپورٹ کا ذکر کیا، 74 کی کارروائی کا ذکر کیا، مسلمان کی 2 تعریفیں بیان کی، ویڈیو کے ہرگز اہم نہ ہونے کے بارے میں بولتے رہے، اور جس ویڈیو کو ہرگز اہم قرار نہیں دے رہے تھے اس کا ہی ایک جملہ اٹھا کر 5 سے 6 مرتبہ چلاتے بھی رہے، اور پھر خوش بھی ہوتے رہے، اور پھر یہ بھی کہہ ڈالا کہ یہ ایک جملہ اس نے سچ بولا ہے۔ اچھا جی، کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ، پھر اس کے بعد انہوں نے مزیدار قسم کی بات کر دی جس کو میں آگے چل کے بیان کروں گی۔ ایک لحاظ سے مسلمان اور ایک لحاظ سے کافر بھی ہم نے سنا، پھر خام خواہ انہوں نے بہت سے حوالوں پہ بحث بھی کی، جہاں انہوں نے میرے دیے گئے حوالہ جات پہ بحث کی تو میں آخر تک بلکہ بارہا ریوائنڈ کر کے سنتی رہی کہ شاید انہوں نے کوئی عقلی دلیل بھی دی ہو، کوئی علمی بات بھی کی ہو، مگر میرے حوالے کو بلا وجہ رد کرتے چلے گئے، اور جواب بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا تھا، کوئی علمی یا ادبی گفتگو نہیں ہوتی تھی، بس یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ حوالوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا، بلکہ تروڑ تو اصل لفظ ہوتا ہے، انہوں نے تو توڑ مروڑ کے پیش کیا کہ بات کی۔ تو بہرحال اس کے جو بے شمار نکات تھے اس میں سے صرف 5 سے 6 نکات مختصراً میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی، اور اس پہ بھی ہم کوئی لیکچر نہیں دیں گے بلکہ بس ہم گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر یحییٰ قادیانی شگوفے باز لگے مجھے، میں نے ان کا یہ ایک نیا ٹاپک، ایک نیا ان کو لقب دیا اس سٹریم کے بعد، کیونکہ اس میں صرف اور صرف شگوفے تھے۔ تو یحییٰ شگوفے باز صاحب نے ہمیں مفاد پرست اور موقع پرست کے لقب سے نواز ڈالا۔ اب نامعلوم ان کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ دنیا میں ہر شخص جو حق کی خاطر آواز اٹھاتا ہے وہ شاید انہی کی طرح ان کے گمان میں شہرت حاصل کرنے کے لیے اٹھاتا ہے۔ تو اب حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں
मोमिनीन को हुक्म दिया है कि ए मोमिनो ज्यादा गुमान से बचो। मगर याया कादियानी साहब तो बहरहाल खुलकर गुमान करते हैं और अपने हर गुमान पर फिर फालतू में बेहद इसरार भी करते चले जाते हैं। शायद इसकी वजह यह है कि यह हुक्म कुरानी तो बहरहाल मोमिन के लिए है, उनके लिए कहां। अच्छा, दूसरा अहम नुक्ता, प्रोग्राम ने उन्होंने भरपूर अंदाज में जोर दिया इस बात पे कि 1974 की बात नहीं है, बल्कि हम तो 1953 में भी गैर अहमदियों को मुसलमान समझते थे और बकौल उनके खुद मिर्जा कादियानी जी भी गैर अहमदियों को मुसलमान ही मानते थे। तो इसका जवाब तो मैं इस प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ एक ही हवाला देकर दूंगी। अच्छा, तीसरी बात उन्होंने एक बहस की कि मुसलमान भी दो तरह के होते हैं और काफिर भी दो तरह के होते हैं और हम बहरहाल हर कलमा गो को मुसलमान मानते हैं। अब ये जो दो तरह के काफिर का जिक्र उन्होंने किया था, ये उस हवाले को शायद समझ नहीं पाए जो मैंने इन्हीं की किताबों में से पेश किया था, जिसमें दो तरह के काफिर डिस्कस करने के बाद खुद उन्होंने लिख दिया था कि ये दो किस्में भी असल में एक ही तरह के हैं। बहरहाल दलाइल देने की अपनी सी कोशिशें नातमाम तो वो करते रहे, मगर प्रोग्राम के आखिर में अपने ही दलाइल पे कायम भी नहीं रह सके। चौथा नुक्ता जो उन्होंने पेश किया, मेरे जिस लेक्चर की वीडियो पे वो बात कर रहे थे कि वो गोया उनके नजदीक इंतहाई गैर अहम थी, मगर उसी वीडियो का एक जुमला, उसका एक क्लिप 5 से 6 मरतबा चलाया गया और फिर ये भी मान लिया गया कि ये बहरहाल उसने सच बोला है। मगर फिर मजे की बात ये हुई कि जैसे ही उन्होंने इस वीडियो क्लिप पे बात शुरू की तो उनकी जबान उनका साथ देने से इनकारी नजर आई, क्योंकि वो जा बजा नर्वस हो रहे थे और कभी था को थी और कभी सुनकर मुस्कुराते रहे की जगह देखकर मुस्कुराते रहे, बोलते रहे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो जो वीडियो इंतहाई गैर अहम थी, उसका जुमला 6 मरतबा चलाया गया और चलाने के बाद हर मर्तबा खुश भी होते रहे। अब वो नाज़रीन और सामीन कराम जिन्होंने इस वीडियो को गौर से देखा था, वो अच्छी तरह से जानते थे कि ये जुमला तारीफिया नहीं था, बल्कि तंजिया बोला गया था और बकौल कल्ट कादियानिया के इल्जामी जवाब था। मगर कादियानी याया साहब का तो ये हाल है कि उनको यकीनन लतीफे की समझ अगले दिन आती है, तो जब तक उन्हें इस जुमले का असल मफहूम समझ में ना आए, तब तक दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि मिस्ताक वो खूब खुश हो लें, क्योंकि खुद उनकी जमात के बानी को भी अक्सर औकात समझ में नहीं आता था कि कौन सी बात तंज है और कौन सी सच। और बड़े ही फख्र से अपनी किताब में लिखते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि मेरी बीवी मेरे मुरीदों के साथ सेट है। शायद उनके नजदीक ये जुमला तारीफिया होगा जो इसका ढिंडोरा पीट रहे हैं, या फिर मिर्जा कादियानी साहब के नजदीक ये कुलिया बहुत कारआमद होगा कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा, अब आप मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे याद आया कि सबसे अहम नुक्ता तो मेरे से स्किप हो गया। डॉक्टर याहिया कादियानी साहब को आपकी मुस्कुराहट से खासी तकलीफ लायक थी और बार बार यही कहते थे कि वो उनको देखकर मुस्कुराते रहे, हालांकि मैं तो यहाँ कहीं नजर ही नहीं आ रही। शायद गुंबदे खिजरा को देखकर मुस्कुराते रहे, असल में वो कहना ये चाहते होंगे कि सुनकर मुस्कुराते रहे। बहरहाल अल्लाह करे कि आप यूं ही हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे लोग हमेशा आपको देखकर यूं ही जलते रहें। अच्छा जी, छठा नुक्ता, अब हम चलते हैं शॉट ऑफ द डे की तरफ। क्रिकेट तो आप में से अक्सर लोग देखते होंगे, अगर खेलते नहीं भी होंगे तो देखने के शौकीन तो होंगे। तो एक शॉट ऑफ द डे होती है ना, जो बड़ी जबरदस्त किस्म की शॉट मारी जाती है, बल्कि शॉट ऑफ द डे क्या, मैं तो इसको शॉट ऑफ द इनिंग ही कहूंगी। आप ये देखिए कि
याहिया कादियानी साहब डॉक्टर पॉइस स्पिरिट की मुखालफत में, जिनको वो बेचारे पॉइस भी नहीं कहना चाहते, अपने ही बुजुर्गों की गुस्ताखी कर बैठे। जो हवाला जात मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद की किताबों से हमने पेश किए, उनको घिसा पिटा हवाला करार दे दिया। कादियानी याहिया साहब इतने घिसे पिटे हवाले हैं, मगर आपकी कुंद ज़हनी का क्या कहिए कि आपकी अकल और समझ में ये घिसे पिटे हवाले भी नहीं आते। और जब हमने मिर्जा कादियानी साहब के घिसे पिटे हवाले पेश किए और फिर उसके बाद मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब के घिसे पिटे हवाले पेश किए, तो उनको घिसा पिटा साबित करते हुए आप लगे तावीलें करने और फरमाने लगे कि हमने तो वो हवाला जात तोड़ मरोड़ कर पेश किए। भाई, हम क्यों ऐसे घिसे पिटे हवाला जात को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे? अगर ऐसी जसारत करेंगे तो हवाला जात तो बेचारे फट जाएंगे। तो ये काम भी आप ही कर रहे हैं और करते रहिए। डॉक्टर याहिया कादियानी साहब, वैसे ये एक जुमला आपने वाकई सच बोला है कि हमने घिसा पिटा हवाला पेश किया था। हमने तो फिर आपके बुजुर्गों का कुछ एहतराम मलहूज़े खातिर रखा था कि मासूम अहमदी बहनों और भाइयों को बात समझ में आ सके। हम मिर्जा कादियानी को ना चाहते हुए भी साफ कहकर पुकारते रहे कि शायद मासूम अहमदी बहन भाई जो इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनको हवाला जात की समझ आ जाए। शायद वो ये सुन ले कि हम लोग उनके नबी को, उनके सो कॉल्ड नबी को बुरा भला नहीं कह रहे, सिर्फ उनकी बातें आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो शायद हमारे बताई हुई कोई बात या आपकी जमात की किताबों के ये घिसे पिटे हवाले उनकी हिदायत का मौजब बन जाए। मगर आपने तो तमाम आदाब और लिहाज बालाए ताक रख दिए और इन हवाला जात को ही घिसा पिटा करार दे दिया। असल मुबारकबाद के मुस्तहिक तो आप हैं कि कल्ट कादियानिया में रहते हुए भी अपने ही बुजुर्गों के हवाला जात को घिसा पिटा करार दे दिया। अच्छा, अब अगला इनका हवाला देखते हैं इन्होंने क्या पेश किया। ये देखें, बड़ा वो घिसा पिटा वही हवाला बार बार ये लोग पेश किया करते हैं। देखते हैं इन्होंने क्या पेश किया। ये देखें, बड़ा वो घिसा पिटा वही हवाला बार बार ये लोग पेश किया करते हैं। ये देखें, बड़ा वो घिसा पिटा वही हवाला बार बार ये लोग पेश किया करते हैं। ये देखें, बड़ा वो घिसा पिटा वही हवाला बार बार ये लोग पेश किया करते हैं। यहाँ पर आपकी इस हवाले की वजह से, इस बात की वजह से, घिसा पिटा हवाला करार देने की वजह से आपको एक मर्तबा फिर सलाम पेश करना है। अब आपके एक हवाला मैं आपके सामने आखिर में पेश करती हूँ ताकि मैं छोटी सी मुख्तसर सी आज की इस गुफ्तगू को कंक्लूड कर दूं। अच्छा, हवाला सिर्फ एक ही सफे का है, मगर सिर्फ इसलिए कि आपको नजर आ सके मैंने इसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है। अब मुख्तसरन आपके सामने बताती चलूं कि हवाला मैंने कहां से लिया है, और शायद आप में से बहुत से सामीन और नाज़रीन कराम को याद होगा कि ये हवाला मैं पहले भी पेश कर चुकी, मगर यहाँ पेश करने की जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि डॉक्टर याहिया कादियानी साहब ने तमाम घिसे पिटे हवालों का बेड़ा गर्क कर दिया था। तो कम से कम आपको बताऊं कि जो तावीलें वो पेश कर रहे हैं और जो वो दावाजात कर रहे हैं कि ना सिर्फ ये कि 1974 बल्कि 1953 की तहरीक में भी और उससे पहले भी हमारा अकीदा हमेशा से यही रहा कि हर कलमा गो मुसलमान है, हाँ वो मिर्जा कादियानी को माने या ना माने। तो ये हवाला है जी, रिव्यू ऑफ रिलीजन्स रिसाला है, उसकी जल्द नंबर 3 है, किताब कलमतुल फसल है, सफा नंबर 125 है। हवाला आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ये हवाला 125 सफे का है और मैं 124 में से भी थोड़ा सा बताऊंगी। तब तक के लिए हवाला आपकी स्क्रीन से हटा देती हूं ताकि आपको बैकग्राउंड समझ आ जाए और फिर इस हवाले को दोबारा लगाती हूं। बैकग्राउंड ये है कि ये किताब जिसका मैं जिक्र कर रही हूं मिर्जा बशीर अहमद एमए ने लिखी है। ये मिर्जा बशीर अहमद एमए साहब कौन है? इनका भी पहले आपको तारुफ करवाया जा चुका है, मगर फिर से बतलाती चलूं उन सामीन नाजरीन के लिए जो नहीं जानते या जो पहली दफा स्ट्रीम को सुन रहे हैं। मिर्जा कादियानी साहब ने अपने इस बेटे के मुतल्लिक इल्हामन ये बतलाया था कि मेरा ये बेटा कमरुल अंबिया है, यानी अंबिया का
चांद है। और ये अंबिया के जो चांद साहब हैं, इन्होंने भी बहुत से चांद चढ़ाए थे। बहरहाल एमए किया था उस वक्त में और बहुत मशहूर और मारूफ भी थे। तो इनकी बात जमात अहमदिया में बहुत मुस्तनद भी मानी जाती थी, क्योंकि ये जमात के बहुत काबिल और मोहतरम माने जाते थे। और चूंकि मिर्जा कादियानी के बेटे भी थे, तो इन्होंने बहवाला बहुत से मुरीदैन के और अम्मा जान जो कि इनकी वालदा और मिर्जा कादियानी की दूसरी बेगम भी थी, और जिनके मुतालिक मिर्जा कादियानी साहब फरमाते थे कि लोग कहते हैं कि मेरी ये अहलिया मेरे मुरीदों के साथ सेट है, उनके हवाले से उन्होंने मिर्जा कादियानी की जिंदगी के बहुत से वाकयात नकल किए, जिनको सीरतुल मेहदी के नाम से छपवाया गया। तो ये जो अंबिया के चांद साहब हैं, ये इस सेकंड चैप्टर में डिस्कस ये कर रहे हैं कि जो मिर्जा कादियानी साहब हैं, अगर उनकी अवाइल की तहरीरें देखें और बाद की तहरीरें देखें, तो महसूस ऐसा होता है कि इनमें तनाकस पाया जाता है। और मिसाल देते हुए वो कौन कौन सी मिसालें दे रहे हैं, जो कि सफा नंबर 124 पे मौजूद हैं। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपके सामने मुख्तसरन पढ़ देती हूँ। मिसाल के तौर पर देखो, हजरत मसीह मौद ने अपनी किताब बराहीन अहमदिया में लिखा कि मसीह नासरी आसमान पे है और जमीन पे नाजिल होगा, और 12 बरस बाद इस अकीदे का ऐलान किया। हालांकि आपको इल्हाम हो चुका था कि तू ही आने वाला ईसा है, मगर तावील करते रहे और बाद में लिखा कि वो मर गया और आने वाला मसीह मैं ही हूं। इन दोनों इबारतों में एक जाहिर बीन शख्स की नजर में तनाकस है, मगर एक मोमिन खूब समझता है कि पहला अकीदा आम अकीदे की बुनियाद पर लिखा गया था और बाद का अकीदा इलाही इल्हाम की बिना पर है। यानी हजरत ईसा की हयात और वफात के मामले में जो पहला अकीदा लिखते रहे वो आम अकीदा था, और जो बाद में पेश किया वो बकौल किसके? कमरुल अंबिया के, मिर्जा कादियानी साहब के इल्हाम पे मबनी है। और वो इल्हाम भेजने वाला देने वाला कौन है? इलाही अल्लाह की जात है। अच्छा, फिर अगली मिसाल क्या देते हैं? इसी तरह दूसरी मिसाल क्या दी कि मसीह मौद ने एक वक्त में ख्याल जाहिर किया, मगर दूसरे वक्त में इसके खिलाफ कहा, जैसे कि नबूवत मसीह का अकीदा है। आप अवाइल में अपने आप को जुज़वी नबी और मुहद्दस के तौर पे पेश किया करते, हालांकि बराहीन के वक्त से ही आपको नबी और रसूल के नाम से पुकारा गया था, मगर उन अल्फाज की तावील करते रहे। लेकिन जब बाद में खुदा की तरफ से आपको सरीह तौर पर नबी का खिताब दिया गया और फिर इसके मुतल्लिक खुदा की वही आप पर बारिश की तरह नाजिल हुई, तो उसने आपको इस अकीदे पे कायम ना रहने दिया, इसलिए आपने इसके खिलाफ कहा और अपने आप को कामिल और जिल्ली नबी के तौर पे पेश कर दिया। ये दूसरी मिसाल है जो कमरुल अंबिया साहब ने दी कि पहले वो अपने आप को उस तरह का नबी नहीं मानते थे, मुहद्दिस मानते थे, और बाद में फिर जब इल्हामन उनको पता चल गया, गो के इल्हाम बराहीन अहमदिया में था, मगर 10 से 12 साल के बाद उनको समझ में आया जब, तो फिर उन्होंने खुद को कामिल नबी मान लिया। इसी तरह आगे कहते हैं, बस इन दो बातों के होते हुए, अब आपके सामने हवाला एक मर्तबा फिर स्क्रीन पर, इन दो बातों के होते हुए अगर हम मसीह मौद की शुरू की किताबों में किसी ऐसी तहरीर को पढ़ें जिसमें लिखा हो कि मेरे इनकार से कुफर लाजिम नहीं आता, तो हमको धोखा ना खाना चाहिए, क्योंकि बाद में मसीह मौद की इस राय को अल्लाह ताला ने अपने इल्हाम से बदल दिया। अहम नुक्ता क्या है कि शुरू की किताबें पढ़ के हमें हरगिज धोखा नहीं खाना चाहिए कि वो मसीह मौद जो है उनके इनकार से कुफर लाजिम नहीं आता, ये धोखा हमने नहीं खाना, क्योंकि बाद में जो उनको अल्लाह ने राय दी, अल्लाह ने अपना इल्हाम दिया, उससे मिर्जा कादियानी जी की राय भी बदल गई। और फिर मिर्जा साहब
अब्दुल हकीम खान के खत के जवाब में तहरीर फरमाते हैं, और जहां अब्दुल हकीम खान का नाम लिखा है वहां साथ ही लिखा है मुर्तद। और क्या फरमाते हैं, अब मैं वो सेकंड पार्ट आपके सामने इसी हवाले का पेश करती हूं। बहरहाल जबकि खुदा ताला ने मुझ पे जाहिर किया है कि हर एक शख्स जिसको मेरी दावत पहुंची है और उसने मुझे कबूल नहीं किया वो मुसलमान नहीं है और खुदा के नजदीक काबिले मुआखजा है, तो ये क्यों कर हो सकता है कि अब मैं एक शख्स के कहने से जिसका दिल हजारों तारीकियों में मुब्तला है खुदा के हुक्म को छोड़ दूं। इससे सहलतर बात यह है कि ऐसे शख्स को अपनी जमात से खारिज करता हूं। हाँ, अगर किसी वक्त सरीह अल्फाज में अपनी तौबा शाया करें और इस खबीस अकीदे से बाज आ जावें तो रहमत इलाही का दरवाजा खुला है। वो लोग जो मेरी दावत के रद्द करने के वक्त कुरान की नसूस सरिया को छोड़ते हैं और खुदा के निशानों से मुंह फेरते हैं, उनको रास्तबाज करार देना उसी शख्स का काम है जिसका दिल शैतान के पंजे में गिरफ्तार है। अच्छा, अब ये जो तहरीर है ना, जैसे हम वीडियो क्लिप सुनते हैं याह्या कादियानी साहब का या किसी और कादियानी का, और उसके अंदर से फिर नुकात बताते हैं, अहम नुकात, ताकि आपकी तवज्जो उन अहम नुकात की तरफ जाए, जैसा कि आज मैं 6 नुक्ते पेश कर चुकी। इसी तरह कमरुल अंबिया साहब ने भी इस मिर्जा कादियानी जी की तहरीर को उठाया और बिल्कुल इससे अगले पैराग्राफ में इसकी मुकम्मल तफसीर बयान की और उसके अंदर भी उन्होंने 6 नुकात पेश किए। तो वो 6 नुकात भी अब आपके सामने रख देती हूँ। बड़े गौर से आपने इनको सुनना है, क्योंकि इन नुकात के बाद फिर तरोड़ने मरोड़ने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाएगी। अब क्या कहते हैं जी कि ये जो ऊपर मसीह मौद ने तहरीर की है, इससे बहुत सी बातें हल हो जाती हैं। अव्वल ये कि हजरत साहब को अल्लाह ताला ने इल्हाम के जरिए इतला दी कि तेरा इनकार करने वाला मुसलमान नहीं, और ना सिर्फ ये इतला दी, गौर फरमाइएगा, इतला देने वाला कौन है? अल्लाह ताला बकौल इनके। और ना सिर्फ ये इतला दी बल्कि हुक्म दिया, बाकायदा हुक्म दे दिया कि तू अपने मुनकरों को मुसलमान ना समझ। तो जनाब ये इल्हामी हुक्म है, रब का हुक्म है, एक आपके बकौल कामिल नबी को मिला है। तो इस हुक्म की हुक्म अदूली आप तो कर सकते हैं, मगर हमें तो जमात वालों को बताना पड़ेगा ना, जरूरी हो गया। अच्छा, इसके बाद दूसरा नुक्ता, दूसरी ये कि हजरत साहब ने अब्दुल हकीम खान को जमात से इस वास्ते खारिज किया। वजह देखिए किस लिए खारिज किया, कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था। इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर याह्या कादियानी साहब, आप तो जमात से खारिज हो गए अपनी, क्योंकि मिर्जा साहब ने तो अब्दुल हकीम मुर्तद को, जिसको वो मुर्तद भी कहते हैं, क्यों जमात से खारिज किया? सिर्फ एक छोटी सी वजह से कि वो गैर अहमदियों को मुसलमान कहता था, और बनता भी था ना जी। इल्हामे इलाही के बाद, हुक्म इलाही के बाद वो कैसे उसको अपने साथ शामिल रखता और कैसे उसको मुसलमान कहता। अच्छा जी, आगे चलें। तीसरे ये कि मसीह मौत के मुनकरों को मुसलमान कहने का अकीदा एक खबीस अकीदा है। याह्या कादियानी साहब, ये खबीस अकीदा तो बड़ों का है, और जिनका अकीदा खबीस होगा उनके मुतल्लिक आपका क्या ख्याल है? उसमें तो फिर आपके सारे खलीफा भी शामिल हो गए, और अपने अवाइल में तो मिर्जा कादियानी जी भी शामिल हो गए। चले खैर, ये अब आप सोचिए किसको कहाँ रखना है और किसको कहाँ से निकालना है। अच्छा जी, उसके बाद चौथे ये कि जो ऐसा अकीदा रखे उसके लिए रहमत इलाही का दरवाजा बंद है। और पांचवा ये कि जो शख्स मसीह मौत की दावत को रद्द करता है तो वो कुरान की नसूस सरिया को छोड़ता है और खुदा के निशानात से मुंह फेरता है। तो जब आपके नबी का अकीदा ये है, और मिर्जा बशीर अहमद एम.ए. कमरुल अंबिया उसकी वजाहत भी खोल खोल के कर रहे हैं कि जो शख्स मसीह मौत को छोड़ रहा है, उसकी दावत का रद्द कर रहा है, उसका इनकार कर रहा है, उसका मुनकर है, तो वो तो दरअसल नाउजुबिल्लाह बकौल आपकी जमात के कुरान शरीफ की नसूस को भी छोड़ रहा है और अल्लाह के निशानात से भी मुंह फेर रहा है।
اور ایسے شخص کو بھی آپ مسلمان کہہ رہے ہیں. حیرت ہے جی. اچھا جی, چھٹا یہ کہ جو مسیح موت کے منکروں کو راست باز قرار دیتا ہے اس کا دل شیطان کے پنجے میں گرفتار ہے. اب کون ہے؟ اب یہ 6 نکات پیش کر کے نیچے کیا لکھتے ہیں قمر الانبیاء صاحب؟ اب کون ہے جو مسیح موت کی کسی پہلی تحریر کو پیش کر کے آپ کے انکار کی اہمیت کو گرانا چاہے؟ تو میں بتا دیتی ہوں کون ہے. ڈاکٹر یحییٰ صاحب ہیں اور ان کے تمام اہل ہیں, ان کے بھائی ہیں جو اسٹریم میں بیٹھ کر واہ واہ کرتے ہیں. تو جناب سامعین و ناظرین کرام, آج کے اس ٹاپک کا عنوان آپ خود ہی سوچ لیجئے. میں نے تو لکھ دیا بلا عنوان, اور اس بلا عنوان کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا دل اپنے سچے دین کی طرف پھیر دے اور ہم سب کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. ہماری تمام عبادات اور ہماری تمام وہ خدمات اسلام جو ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں ان سب کو اپنی جناب میں قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وائس فیلڈ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں کہتا ہوں کہ آج آپ نے 6 پوائنٹ ہی رکھے, آج آپ نے لمبا چھکا مارا ہے, اتنا لمبا چھکا مارا ہے کہ وہ جا کے بال جو ہے وہ مرزا قادیانی کے گھر میں گرا ہے, یعنی مرزا مسرور کے گھر میں گرا جا کے. اور چونکہ مرزا مسرور اور میرا کزن ایک ہی ملک میں رہتے ہیں تو اب یہ بال یہ دونوں ادا کر لیں. یقین کیجئے کمال کر دیا آپ نے. اور یہ جو آج آپ نے بتایا ہے حکم الہی جو ہوا ہے کہ عبدالحکیم بٹالوی کو, بڑی باتیں کر رہا تھا میرا کزن کہ وہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے جی, تذکرے کی عبارت پیش کر دی اور نیچے جناب انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ یہ تو عبدالحکیم بٹالوی کی طرف سے تھا. تو پتہ چل گیا کہ عبدالحکیم بٹالوی کو جماعت سے کیوں نکالا گیا, اس کو